Hello, good morning, my dear students. Today we will study about the trigonometry exercise 8.1. Question number 1. In triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24, BC equal to 7. Right angle at B. Question number 1. ABC is the right angle triangle. राइट एंगल कहाँ पे बेटा बी पर है, तो हम ऐसे इसको कर देते हैं A, this is the B, this is the C. Angle B is how much? 90 degree. Now AB is 24. We have AB 24 and BC equal to 7. Determine the sin A, cos A. Sin A. Already I have discussed about the when angle will be changed. Then अगर बेटा हम sin A की बात करते हैं तो ये sin A जब हो जाएगा then the perpendicular will be BC. BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि मैं जैसे ही बताया हूँ अगर sin C की चर्चा करते हैं तो अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. For sin A BC will be the P. पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं. अगर हम sin A की बात करेंगे when we will talk about the sin A, then BC will be the perpendicular, AC will be the hypotenuse in any condition, that will be the constant, and AB will be the base. sin A के लिए तो अब हमको क्या निकालना है? मेरे पास sin A बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर क्या होता है? P by H. What the value of the sin theta? That means P by H. तो यहाँ पे अपने को P दिया हुआ है, but we don't have H, so we have to find out H. We have to find out H. H equal to क्या होता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. H will be never change in both condition for sin A और sin C. sin A होगा या sin C होगा, tan A होगा और tan C होगा. In any condition AC will be constant, AC will be always hypotenuse. So H is equal to how much? रूट अंडर P स्क्वायर. P कितना है? 24 ले लो. 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. 27 का स्क्वायर 576 प्लस 49 plus 49, that is equal to how much? Root under 625, that is equal to root under 25 square. That means we have the 25. H equal to how much? 25. H का वैल्यू क्या हो गया? 25. So we have to write here 25. Now sin A बराबर क्या हो जाएगा? sin A के लिए हो जाएगा BC P by H. तो BC by AC, BC by AC. That means what is the value of BC? That is the 7 और AC is 25. So we have to write 7 by 25. उसके बाद क्या है? cos A. cos A B by H. बेटा cos A के लिए ये हर किसी के लिए, चाहे tan हो, cos हो, cosec हो, sec हो, cot हो. If we will discuss about the angle A, then always BC will be the perpendicular. Keep in mind, my dear students. If we will discuss about the angle A, that means sin A, cos A, cot A, tan A, then always in all condition BC will be the perpendicular, AC will be the hypotenuse, and AB will be the base. So cos A बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? B by H. तो यहाँ पे B क्या है मेरा? cos के लिए AB हो गया. AB upon AC. What is the value of AB? That is the 24. So 24 by 25. इसी तरह sin C और cos C निकालना है. Like this way you have to find out sin C और cos C. First वाला सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड sin C. sin C क्या हो जाएगा? sin C that is equal to P by H. तो sin C के लिए अपोजिट साइड मैंने बता दिया. ये क्या हो जाएगा? AB परपेंडिकुलर. देन वी हैव टू राइट AB by AC. AB by AC that is equal to 24 by 25. Now cos C. cos C equal to cos C. cos C क्या बेटा? B by H. Then we have to write BC by AC. BC upon AC that is equal to how much? 7 upon 25. That is our answer. We have to solve like this way and find out the question, find out the value of the given statement. In figure number 8.13, find the tan P and the cot R.
find the tan P and the cot R. So ये बेटा इजी है, आपको निकल जाएगा। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू इक्वल टू 12 है, पी आर इक्वल टू 13 है, सो क्यू आर इक्वल टू हाउ मच 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट मीन्स 169 माइनस 144 144, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 25, दैट तो रूट अंडर 25 इक्वल टू हाउ मच 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। अगर नहीं होगा तो फिर आप पूछेंगे तो फिर आगे डॉट क्लास में इसका क्लियर करेंगे। बहुत इजी है बेटा ये, मुझे सेकेंड वाला छोड़ रहा हूँ। अच्छा कर ही लेते हैं, चलो बेटा फटाफट देख लो। पी क्यू आर, यहाँ पे क्या है 12 दैट इज 13, फिगर 10p माइनस कॉट आर, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, इन एनी कंडीशन ये PQ परपेंडिकुलर होगा, QR बेस होगा और PR क्या है हाइपोटेनियस है। इन एनी कंडीशन ये PR कभी चेंज, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। सो हम लोग क्या लिखते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू, हमको क्या चाहिए यहाँ पर B चाहिए, बेस चाहिए जनरल कंडीशन में। तो बेस चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, QR इक्वल टू QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू रिटन हियर 13 स्क्वायर माइनस हाउ मच 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 25 रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5। सो क्यू आर इक्वल टू हाउ मच, क्यू आर इक्वल टू 5। ये बेटा क्या हो गया अपना 5 हो गया। अब क्या कहता है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट 10p, यस 10p, व्हाट द वैल्यू ऑफ 10p, tan थीटा p by b, tan थीटा इक्वल टू हाउ मच p by b, tan थीटा क्या हो जाएगा p by b। यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर क्या हो गया, tan p इक्वल टू tan p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर। सो वी हैव टू राइट फर्स्ट क्यू आर, एंगल P के अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो वी आर राइटिंग हियर क्यू आर, क्योंकि tan थीटा बराबर यू नो वेरी वेल tan थीटा इक्वल टू p by b परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर और बेस क्या हो गया PQ। सो वी आर राइटिंग 5 by 12 10p। अब क्या है बेटा cot r, नाउ वी हैव टू गो थ्रू द cot r। cot r मतलब ये cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर b by p, बिकॉज cot थीटा इज इक्वल टू 1 by tan थीटा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। सो वी आर राइटिंग हियर b by p। तो cot r क्या हो जाएगा, इसके लिए cot r के लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू cot r 5 by 12। सो 10p माइनस cot r, सो 10p माइनस cot r दैट इज इक्वल टू 5 by 12 माइनस 5 by 12 दैट इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो गया आंसर मेरा। क्वेश्चन नंबर 3, sin a इक्वल टू 3 by 4, sin a इक्वल टू 3/4, यस कैलकुलेट द cos a एंड द tan a। बेटा ये हो जाएगा यहाँ से sin a इक्वल टू 3 by 4 है, तो sin a 3 by 4 है। मान लो ये मेरा ट्रायंगल हो गया ABC हो गया ट्रायंगल, sin a बराबर 3 by 4, तो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये क्या है sin थीटा इक्वल टू हाउ मच, sin थीटा इक्वल टू p by h। तो क्या दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3 by 4, दैट मीन्स इक्वल टू p by h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वी हैव टू राइट, सो p इक्वल टू 3 एंड h इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड आउट, ये p हो गया, ये h हो गया, सॉरी ये p हो गया, ये h हो गया, ये हो जाएगा b। किसके लिए, sin a के लिए। तो हम लिखते हैं कितना
तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर एट फर्स्ट वी हैव टू क्या निकालना है बेटा? उसमें वो क्वेश्चन देख लो, cos ए एंड द tan ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे बेस निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या? रूट अंडर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4 स्क्वायर, अब माइनस 3 स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? 16 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 7। Now we have AB equal to root under 7। अब क्या निकालना है अपने को? cos A और tan A निकालना है। What we have to find out? cos A and the tan A। तो B क्या हो गया? cos A बराबर क्या हो जाएगा my dear? cos A, cos A बराबर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। cos A बराबर क्या हो जाएगा? AB by AC, that will be how much? AB by AC। cos A that means base by base upon hypotenuse, तो AB by AC, AB का वैल्यू क्या है? √7 है, √7 by 4। cos B कितना हो जाएगा? cos B नहीं, क्या दिया हुआ है? tan A, tan A P by B, P by B, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा tan A के लिए। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है, BC है, तो ये हम इसको क्या लिखते हैं? BC अपॉन AB P by B that is equal to 3 by √7, 3 by √7। इस तरह से फाइंड आउट करना है। फोर्थ वन, 15 cot A 8। नाउ बेटा अपने को ये देखना है 15 के साथ cot A क्या है? 15 इज इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद cot A। 15 क्या है? cot A के साथ में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आप जानते हो, example 2x equal to 5, that means here 2 is in the terms of multiplication, so x equal to how much? 5 by 2। तो यहाँ पे सेम टू सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot A equal to, so cot A equal to 8 by 15, 8 by 15। तो ये क्या हो गया? cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा equal to B by P, tan थीटा P by B, tan थीटा क्या होता है? P by B, तो cot क्या हो जाएगा? B by P। बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूला, कल मैंने हर एक फॉर्मूला को लिखवाया था। cot थीटा इक्वल टू हाउ मच? 1 by tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 by P by B दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई B by P दैट इज इक्वल टू B by P, तो ये cot थीटा हो गया। सो tan के रिलेशन में भी और cot ऐसे भी B by P होता है, यू कैन रिमेम्बर। तो यहाँ पर क्या हो गया? cot A equal to 8 by 15, that means ये क्या हो गया? B cot थीटा बराबर B by P, तो ये हो गया B है, नीचे वाला हो गया P। so B equal to 8 और P equal to 15, B equal to 8 और P equal to 15। so we have to find out H equal to what? We have to find out H का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 225 प्लस 64, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 289। अब बेटा दैट मीन्स राइट नाउ यू हैव टू सॉल्व द कैलकुलेट द cos A और tan A। अब यहाँ से हो जाएगा आपको cos A tan A इजीली, सो यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन, दैट इज इजी फॉर यू। इक्वल टू क्या है? sec थीटा इक्वल टू 13 by 12, sec थीटा इक्वल टू 13 by 12, तो sec थीटा क्या होता है? इक्वल टू B by H, सॉरी cos थीटा B by H, तो ये क्या हो जाएगा? sec थीटा H by B। sec थीटा क्या होता है? cos का उल्टा होता है, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू B by H, सो sec थीटा इक्वल टू H by B। H क्या है यार? H इज इक्वल टू 13 और B इज इक्वल टू हाउ मच? 12, 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 25, दैट मीन्स यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसके बाद सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। साइन के टर्म में cos sec tan और cot के टर्म में बेटा आपको लिखना है। वही P B H सबका वैल्यू है ही,
उसको केवल आपको डाल देना है, आएगा, इसको जरूर आप देखना एक बार। हाँ, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्वेश्चन नंबर 6, पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। काटने के लिए ए सी दैट इज द बी। क्या दिया बेटा? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द acute angle such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B। तो हम पहले लिख लेते हैं cos A equal to cos A बराबर क्या हो जाएगा? acute angle given that, इसको अच्छे से करो, नहीं तो तुम लोग भी ऐसे ही करके छोड़ दोगे। given that, इसको ऐसा लिखना है आपने को स्टेटमेंट में, given that cos A equal to cos B, given that ये दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो कुछ टीचर वो भी सही तरीका था, लेकिन इसको अपने को अच्छे से लिख रहे हैं तो मार्क्स कम दे देगा। तो cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, सो वी हैव टू राइट cos A इक्वल टू cos A इक्वल टू हाउ मच? cos A के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया। ओके, तो हम क्या लिखते हैं cos A के लिए? AC बाय बेस बाय हाइपोटेनियस, AC बाय AB, AC बाय AB, cos A। cos B के लिए क्या होगा बेटा? cos B के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। cos B बराबर क्या हो जाएगा? BC बाय B बाय H, BC बाय AB, BC बाय AB फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है? cos A इक्वल टू cos B। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या? cos A इक्वल टू cos B। सो AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया AB। सो क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। सो दैट A इक्वल टू एंगल B। अब क्या है? नाउ दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। वी हैव द इक्वेशन नंबर 2, AC इक्वल टू BC। So we are giving one sign like this way. This means AC is equal to BC. Already we have get from the calculation. So AC equal to BC. That means what you know that if both side will be equal, if AC equal to BC, then angle A equal to angle B. If AC equal to BC, then angle A equal to angle B. From equation 2, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव। ये प्रूव हो गया। बिकॉज आप जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड बराबर है तो बेस एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये बेटा ये आइसोसेलेस है, दैट मींस AC इक्वल टू BC, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्योंकि अब बेस क्या हो गया इसका? AB हो गया। ओके, 7/8 इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? We have to find out, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा इसको दो तरीके से करेंगे अपन, है ना? cos थीटा बराबर क्या है? 7/8 गिवन, ये क्या है? गिवन दिया हुआ है। तो cos थीटा क्या लिखते हैं हम? cos थीटा इक्वल टू 7/8, दैट मींस व्हाट? cos थीटा इक्वल टू B बाय P। cos थीटा इक्वल टू हाउ मच? B बाय P। सो B इक्वल टू 7 और P इक्वल टू cos थीटा साइन का, सॉरी tan का अपोजिट, tan थीटा, रिमेंबर once again, tan थीटा इक्वल टू P बाय B। सो cos थीटा इक्वल टू B बाय P, रिवर्स हो जाएगा, इससे पहले ही बताया था। तो यहाँ पे cos थीटा दिया 7/8, तो 7 क्या हो गया? B का वैल्यू, और P इक्वल टू हाउ मच? 8, P इक्वल टू 8। बट हमको क्या है बेटा? साइन और cos के टर्म में निकालना है। तो फॉर फाइंडिंग द गिवन टर्म इन द टर्म ऑफ साइन एंड cos, देन वी मस्ट हैव टू फाइंड आउट H। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? H फाइंड आउट करना है। H बराबर क्या हो जाएगा? सो H इज इक्वल टू √P² प्लस B²।
दैट इज इक्वल टू हाउ मच 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 64 प्लस 49, दैट मीन्स 113, रूट अंडर 113। तो h बराबर क्या होगा बेटा, रूट अंडर 113, दैट इज द वैल्यू ऑफ द h। नाउ अब हम इसको देख लेते हैं। तो दो चीज करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करके निकालेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली वी हैव टू सॉल्व दिस। दैट मीन्स व्हाट, तो 1 प्लस साइन थीटा, अब हम इसको लिखते हैं 1 प्लस, वैल्यू पुट कर देंगे। दो प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस क्या होगा, डायरेक्टली साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर p/h 8/113, दो तरीके से। दूसरा क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो हम कर लेते हैं दोनों। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा a प्लस b इंटू a माइनस b, यू नो वेरी वेल, यू आर फैमिलियर विद द अलजेब्रिक फॉर्मूला a plus b into a minus b, that means a square minus b square, that will be how much, 1 square minus sin theta का whole square, है ना। नीचे में भी क्या हो जाएगा, a that is also in the terms of a plus b into a minus b, so we can write here 1 square minus cos theta का square। Have you got a plus b into a plus b into a minus b, so we are writing here 1 स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है, ये हो गया मेरा ए, ये टर्म क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी है, और ये भी क्या है, ए माइनस बी के फॉर्म में। सो वी आर राइटिंग हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, दैट इज द ए, दैट इज द बी, दैट इज द ए, दैट इज द बी। नीचे वाला भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। सो वी आर राइटिंग 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी एक्चुअली ये आगे था, लेकिन क्वेश्चन पहले ही दे दिया, ये आगे बताएंगे। तो अभी इसको जानने के लिए बेटा आप एक फॉर्मूला और नोट डाउन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, चलो नीचे करते हैं। इसको जानने के लिए बेटा यहाँ पे फॉर्मूला, ये जानने के लिए क्या फॉर्मूला एक नोट डाउन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आ गया, मैंने बताया नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हैशटैग। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, ये बेटा इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस वे, लाइक दिस वे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच, cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना। क्या आ गया था अपना, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा बाय, इसको ऐसे नहीं तो एक बार और ये लिख लो, इसको cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर बाय नीचे में sin थीटा का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये cos बाय sin क्या होता है, cot होता है। ये हो जाएगा मेरा क्या, cot थीटा का cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स हाउ मच, cot स्क्वायर थीटा। अब क्या था अपना, तो नीचे में क्या दिया हुआ था, cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। बेटा इसको तो डायरेक्टली कर देंगे, आपको करना ही नहीं है, ये एक तरह से हो गया। दूसरे तरीके से क्या हो गया,
तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होती है, ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा 49/64, 49/64 डायरेक्टली। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जब ये सॉल्व किए तो ये आया। दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें, इसमें केवल वैल्यू पुट कर देना है आपने को। दूसरा 8 था तो यहाँ पे so b equal to 7 and p equal to 8, b equal to 7 और p equal to 8, h बराबर क्या आया था √113, √113। सो अब क्या दिया हुआ है मेरे पास 1 प्लस, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिख लो। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा मेरा p/h, तो 8 बाय क्या हो जाएगा √113 एंड cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा b/h, 7/√113 हो गया। ये हो गया मेरा दूसरे प्रोसेस से। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8/√113 इंटू क्या हो गया, ये प्लस है तो प्लस डाल दो, इधर दूसरा क्या है माइनस है, तो 1 माइनस 8/√113 क्योंकि साइन थीटा है ऊपर में a प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे में क्या है वो, नीचे में है मेरा 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। अब बेटा इसको दो, ये भी यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा a प्लस 1 स्क्वायर माइनस 8/√113, तो ये क्या हो जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 हो गया 1 माइनस 64/113 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे में 1 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113/113। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सब्सट्रैक्शन। इसको सॉल्व करेंगे जस्ट जितना आया था सेम आ जाएगा। ये एक बेटा दूसरा प्रोसेस हो गया है ना। अब इसको देखना आप लोग, एलसीएम नीचे में कुछ नहीं था, एलसीएम क्या हो गया इसका, डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 है, एट फर्स्ट 1 और 113 का एलसीएम निकालना जानते ही होंगे आप लोग।